Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 8 motion. Okay, so motion, you already familiar with motion because you all doing this in your everyday life, daily and every time. Okay, just like examples, when we move one place to another place, there is motion. Okay, the traveling of vehicles is motion. Okay, and in our body, in our arteries and veins, the blood circulation is a motion. Okay, the movement of the atoms in a matters is a motion. Okay, and means that it is very important things in our life which can be discussed in this chapter. Okay, so motion having many types of motions, just like when any person is moving on a straightly on a single path, so that is known as straight motion. ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी से कहीं जाते हैं या ट्रेवल करते हैं रोड पे, जब हम लोग गाड़ी से कहीं जाते हैं या ट्रेवल करते हैं रोड पे या दौड़ते हैं ट्रैक पे, ठीक है, तो इट इज नोन एज स्ट्रेट मोशन. वैसे क्या होता है, द revolution of earth surround sun is moving on a circular path, so that is known as circular motion. Okay, then we will discuss it in furthermore in our chapter, but there is a lots of type of motions: rectilinear motion, circular motion, straight motion. Okay, so these are the types of motions, and also we discussed about the examples of motions. Okay, and please read book and you will get the many another terms of the motion also. Okay, always in a physics we said the things when the things is happened, that is known as phenomenon. So okay, motion is a phenomenon, okay, in a physics, in which object change its position over time. टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो अपने फाइनल ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशंस की ओर मूव करते जाता है, तो दैट इज नोन एज मोशन. ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर आप स्कूल होम से अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यू विल चेंज योर पोजीशन विद द टाइम. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं विद द टाइम, तो दिस थिंग्स इज नोन एज ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेस विद द टाइम. ओके dear student, motion is mathematically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, speed and time. Okay, let's see one by one each and every terms of the motion step by step. ठीक है, and you will understand it very clearly what is motion. Okay dear students, I hope you understand it. Now we will discuss mostly about the straight line motion. Okay, that means we will discuss further more types of motion in our after the chapters. Okay, first the basic terms are, these are the basic terms: distance, displacement, origin point is also known as origin point, final point. Okay, so we are all familiar with the number line. Okay, the number line is starting from 0. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to so on. Okay, so this is known as number line. When we move
मूव ओरिजिन, जो ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज ओरिजिन एंड इट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या ओरिजिन है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड ही है, समथिंग समथिंग, बट यहाँ पे जो मोशंस होगा इट इज ओनली ऑन अ पाथवे और सर्कुलर वे, ठीक है। सो ओरिजिन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ओरिजिन, ओके। जस्ट लाइक हियर फ्रॉम स्कूल, दिस इज जस्ट लाइक हियर होम, home is your origin point, okay, and your school is from here, okay. So at the time we can say that your school is 5 kilometers, just like this, these are given in kilometer. So at that time we can say that your school is 5 kilometers from your home. That means home is your origin point, because from the home we can start counting, ठीक है। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे काउंट करना शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ ओरिजिन पॉइंट योर होम, ठीक है। सो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज defined by the total path length covered by any object is known as distance, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, दिस इज योर होम, ओके, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट 0 O, लेट वी सेट इट टू O, ठीक है, इसको O बोल देते हैं, एंड इट्स A, ओके। सो O टू A, जब आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से स्कूल स्कूल की ओर डिस्टेंस करते हैं, ठीक है, ट्रेवल टू डिस्टेंस, दैट मीन्स यू कवर्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 5 किलोमीटर, एंड व्हेन you going to school and come back to the home, ठीक है, just like O to A and A to O, जब O से A गए, A से O आए, ठीक है, that means you travel total distance is 10 kilometer, okay dear students. So this is a path length which is covered by any object, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप हो, गाड़ी हो, व्हीकल्स हो, या कोई भी चीज हो, ठीक है, तो दैट इज अ डिस्टेंस, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, और यहीं पे एक और वर्ड आता है मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटीज in the numerical values, ओके। मतलब क्या होता है, अभी हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट बाय थ्रू द डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग अगर स्पेसिफाई करना है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, तो उसके लिए केवल डिस्टेंस पाथ लेंथ कोई बता दे तो दैट्स sufficient, that is known as magnitude, that's 10 kilometer, 8 kilometer, just like here home to school distance is, origin to A distance is 5 kilometer, that is the magnitude.
मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि ये केवल डिस्टेंस के लिए हो, द फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम लोग नंबर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सभी जगह ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड वन इज डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल गया आपको, डिस्टेंस क्या होता है। सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, अभी यहां लिख देता हूं इसका डेफिनेशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from initial position to final position। ओके, तो यहां पर क्या है, जो O है दैट्स ओरिजिन इज आल्सो नोन एज इनिशियल पोजीशन एंड आल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसी को रेफरेंस पॉइंट भी बोलेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है, दैट मींस अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। जस्ट लाइक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ट्रेवल करना शुरू होता है, ए पे जा करके स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो ए से स्टॉप होकर के हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइव किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, ओरिजिन 0 पॉइंट पे, अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट पे आ गया है, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस करना, मतलब कि डिस्प्लेस जहां पे था वो उस प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाना, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे अभी वो चले गया रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो एट दिस कंडीशन जब आप होम से स्कूल की ओर ट्रेवल करते हैं, दैट मींस यू डिस्प्लेस 5 किलोमीटर। ओके, एंड व्हेन यू कम back to from school to home, okay, that means you are coming on your initial position again, that means displacement is 0। अगर आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन की अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स हाउ यू डिस्प्लेस 5 किलोमीटर, बट व्हेन यू डिस्प्लेस अगेन टू योर रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी 0 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल बी 0, ओके, बट डिस्टेंस नॉट एनीवेयर 0, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, जब आप स्कूल से होम से स्कूल जाते हैं, स्कूल से होम जाते हैं, दैट मीन्स यू कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। Okay, so what is reference point or origin point? To describe the position of an object, ऑब्जेक्ट के पोजिशंस को, कि ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है, ठीक है। सो वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है कि आवर ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन एट दिस टाइम, तो दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट एंड ओरिजिन पॉइंट। और वहां से जब हम लोग क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं किसी स्पेसिफिक पाथ पे, तो वो कहलाता है आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और जहां पर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं जा करके, व्हेन वी रीचिंग आवर फाइनल एट द एंड पॉइंट ऑफ द आवर लेंथ, सो इट इज नोन एज फाइनल पॉइंट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया और ये इसका
फाइनल पॉइंट हो गया, मतलब जहां पर भी हमारी जर्नी ओवर हो जाती है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज फाइनल पॉइंट, जिसको आप अपने वे से नोट कर सकते हैं।